Ya jule nga sri ang mo ini ada special Olympic barat util latake. Tene ngaje main bo util latake na training center jik festival dia le tu ni pia special level chida ni pia. Takon game situ sangala health bo kartan so screening diring na yes just dia le. Testing na August na yang ai chochesin. Men mikji boto ini ke tu ne ji azuk problem duk stas dina testing mane ikane chi tong azuk serious jot kanun ngaje yang follow up jochuk sin yale free of cost hele hospital la jochuk tini kan private doctor yot mam shazia dental le kone ekdam free tu ne fia jochen yale Vale. Tene I azuk pe ka ngaje game ta district game testing ma yali game just na district na sam shi tun azuk qualify chate te un national level tene international level tizu khese se sambai ji juten nye parent mun la tena in ngaje training center fest yo te jan tun aka khong na ka to practice chana ka to khon la talent ma ko yo no hala tene tena azuk NSPC sponsor chate coach ngi jo yali tene azuk po hostel bo a chisho de high school hostel la training batanga Thursday Friday Saturday hafte na lansum tene parents songa te juwa in kan me thun te kana ra parent mune khong aza jasti juwa ni Dimbarang tene raksanga tai chigi ka le tene ngata I special Olympic Bharat chuka ne tene spawe tene ngata ka tu ni fia skinning ji chene tene halal tebina tene raksanga tai ka so nang tene ngata I physio iski ka skinning nang azko treatment chet mala rakin tene nyampu ka ne tene samsi khone को ठीक यत kan gun kone ngata baki Olympic chokonte guni pia kone select choche se ngata spirit wala dembarang mal de moskap se topchino wala ina jong ngata le ngata pilo kuna daksa ngata exam ngata participate chen yoteno ta ma sang ina ne ma sang ma nge lewachin ki ata ladak ne I sports kunina salians kunina ata ma ko ane nachok salians sikang dire yot halale jamling dang pe ka hisab asta chi ne te kunina ladak ne ngata tu participate chogen ne ngata ladak se min yar min ngata gen la kese se na te ngata dembarang scabs de music topchen dembarang e phamagun la to junela ma sa phamagun kilo ga pinga jate kon lang scabs ar chukches scabs top chukches nja phamagun ina zo pilog ne ngata chuspa chungata ladak sana chuspa bagiri no to chuspa mo koji da sai chok mo koji so zade ne to te bunena participate nen chukches tene ka wejeste tene de tugun ngata chok sana ma azu chachen nyampo I sports je ngata sports na ladak sana skomuchi ngata sports tene kazuk di chiga guni fia woshi sports teacher galale te chok singma ne meton tene te chok ngata ladak sana kyungen ngata sports taksa ina ngata jishken baguni thokpenestana nga chorche la sport mane nipkya jik chapsi gyung dusel galale te changmen ne mane ngata ladak sana nishik chok ngata training tang kanji gyale yot na ngata gyagar man chigal international level ka ngata taksa minda pera sports channel ya ina zo ngata sports mane mangpo ngata state level ka district level ka national level ka chen yot galale to chos gune na ngata ladak na participate nen yan chen ngata ngejuan ki ngata UT administration ando ya ngata konsal yot ngata district miskena konsal gun yang ten nastak jate iwe to atene sports gergan dik kazong ngata sports te gune na ngata so gune na training tang yan na tene ngata I chok ma again la binchel sinchela आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे लेह में मौका मिला जो यहाँ के चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ है जिनको स्पेशल ओलंपिक भारत ने यहाँ पे जमा किया है और इनकी स्क्रीनिंग हो रही है हेल्थ स्क्रीनिंग और इसके साथ साथ जो इनका रोल रहता है स्पोर्ट्स में और इनको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स खिलाया जा रहा है उससे इन बच्चों का एक डेवलपमेंटल
फेज़ आ जाता है और ये डेवलपमेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट में बॉडी डेवलपमेंट पे भी इनका फोकस रहता है। जो यहाँ के एरिया डायरेक्टर है अंगमोजी, तो इन्होंने जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, मुझे बहुत खुशी हुई कि जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं वो बहुत ही अच्छे स्टाइल में है, उनका मनोबल बहुत ऊंचा है और जितने भी प्रोग्राम्स इस तरह के यहाँ पे होंगे तो ये बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी स्पोर्ट्स खेले। और जो हमने एक सोशल स्टिग्मा रखा था कि शायद बॉडी फिटनेस ही स्पोर्ट्स के लिए ज़रूरी है, लेकिन इन बच्चों के जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं उनमें ये सभी लोगों को एक आवाज़ से अपनी जो इनका न्यू मैसेज होता है वो यही होता है कि बॉडी फिटनेस हैज़ नथिंग टू डू विद द स्पोर्ट्स। कोई भी बंदा स्पोर्ट्स खेल सकता है, किसी भी बंदे में जितनी उसकी क्षमता हो, जितनी उसको रब ने क्षमता दी होगी उसके हिसाब वो स्पोर्ट्स खेलेगा, वो कुछ भी काम करेगा। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए वो इनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे और फुल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। ये राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट भी कहता है, जो एक्ट पूरे इंडिया में इनके लिए बना है। और जितने भी यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनका एक मैसेज जाना चाहे पूरे इंडिया में कि लेह कि जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको वो फैसिलिटीज़ दी जाए, इनके लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एक्सेसिबिलिटी अगर इनको दी जाए तो यहाँ सब कुछ डिसेबल फ्रेंडली होगा और वही इंक्लूजन कहलाता है, उसी से इंक्लूजन हो जाएगा। जो यहाँ के प्रेसिडेंट है हमारे स्टॉक दोरजे साहब ने बहुत ही अच्छी मेहनत की है और जितने भी लोग यहाँ पे पहले इकबाल साहब थे वो तो इस दुनिया से चले गए, हम उनको भी याद करते हैं, आज उनकी कमी भी है, लेकिन जिस तरह से दोरजे जी ने इस मिशन को आगे लिया है वो काफ़ी सराहनीय है। तो जो यहाँ के एलजी साहब हैं उनको चाहिए कि डिसेबिलिटी पे स्पेशल फोकस हो और एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट को प्रायोरिटी सेक्टर बनाया जाए ताकि इंक्लूजन हो और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। पेरेंट्स के लिए यही इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो अपने बच्चों को पे भरोसा रखे और इनको समझे कि ये हमारे जो बच्चे हैं इनमें भी वही टैलेंट है जो इनके नॉन डिसेबल बच्चों में है। अगर इन बच्चों पे पूरा ध्यान दिया जाए तो एक वक्त आएगा हर एक पेरेंट इसी बच्चे की वजह से मशहूर होगा। जिस तरह स्टीफन हॉकिंग ने साइंटिफिक दुनिया में अपने जलवे दिखाए वो उनके पेरेंट्स ने सपोर्ट दिया। जिस तरह थॉमस अल्वा एडिसन की माँ ने अपने बच्चे को पूरा सहयोग दिया, तो आज जो हम बत्तियाँ देख रहे हैं, ये रोशनी देख रहे हैं, वो थॉमस अल्वा एडिसन की है। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन तब कामयाब हुआ, इसाक न्यूटन तब कामयाब हुआ, क्रिस्टी ब्राउन तब कामयाब हुआ, और जितने भी लोग हैं जॉन मिल्टन जैसे लोग तभी कामयाब हुए जब उनके पेरेंट्स ने उनको घर में वैसा माहौल दिया, ऐसी फैसिलिटीज़ दी, तो तभी वो बन जाते हैं। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होता है, बच्चा टैलेंटेड भी हो तो वो टैलेंट ज़ाया होता है। पेरेंट्स को चाहिए इन बच्चों पे इन्वेस्ट करें, इन बच्चों को पोस्ट से पाले और जहाँ पे भी आवाज़ आए कि इनको यहाँ लाना है उनको लाए, हर इवेंट में पार्टिसिपेट कराएं, तो कहीं ना कहीं उनका बच्चा क्लिक हो जाएगा, वो ऐसा कारनामा करेगा जिससे पूरी दुनिया में लेह का नाम भी रोशन होगा और उस फैमिली का भी नाम रोशन होगा। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं खुद एक पर्सन विद डिसेबिलिटी हूँ। पहले तो मैं जब तक मैं कॉलेज जाता था मेरी कोई डिसेबिलिटी नहीं थी। फिर एक जो कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट चला उसमें मुझे एक गोली लगी कमर में, मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई, बाद में लेग्स एम्पुटेशन हुई। तो मैंने भी यही सोचा कि अब मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। मैंने एक छोटा सा स्कूल स्टार्ट किया जिसमें इस वक्त 250 बच्चे एनरोल्ड हैं और ज़्यादातर बच्चे जो है वो मेंटल डिसेबिलिटी के, जिसमें ऑटिज़म, सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम के बच्चे ज़्यादा है। डेफ एंड म्यूट या हेयरिंग स्पीच डिसेबिलिटी के बच्चे भी बहुत से हैं और ऑर्थोपेडिक डिसेबल्ड बच्चे भी वहाँ आते हैं जिनको हम फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और बाकी थेरेपीज देते हैं। इसके अलावा हम एजुकेशन, स्पोर्ट्स और वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं। मैंने यही देखा कि जब इन बच्चों पे इन्वेस्ट किया जाता है, जब इनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है तो ये कुछ ना कुछ करके ही जाते हैं। हमारे पास जो पहला स्टूडेंट था वो एक ब्लाइंड बच्ची थी जो आज JNU से रिसेंटली PG करके आई।
तो अगर हमने उस बच्चे को पे फोकस नहीं किया होता तो शायद वो आज घर में सड़ रही होती, एक ही कोने में बैठी हुई होती। तो अगर हम देखिए जहाँ पे भी सही इन्वेस्टमेंट होता है, अगर कोई बिजनेस पे पैसा डालता है वो कमाता है, मेहनत करता है, इसी तरह ये एक ह्यूमन रिसोर्स है। अगर हम इनको सही तालीम दे, सही ट्रेनिंग्स दे, तो ये ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा कारनामा दिखाते हैं जिससे इनका नाम फिर डिफरेंटली एबल, स्पेशली एबल पड़ता है।